Hello student, Om Shanti. Welcome to all. Now I am going to discuss the empirical formula and its numericals. तो सबसे पहले आप ये जानिए फार्मूला तीन तरह से होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला. What is the molecular formula? That formula which indicates the real number of atoms of constituent element present in compound. That shows real number of atoms of constituent element present in compound. And empirical formula shows simple ratio. It shows simple ratio among or between atoms present in molecules. And a structure formula, how atoms are arranged together, if it is shown, that is known as structural formula. Arrangement arrangement amongst atoms present in molecule. Molecular formula indicates the real number of atoms of constituent element, while empirical formula that shows the simple ratio of atoms present in molecules. And a structure formula, how that atoms are arranged together, that is known as the structural formula. Just you write here the formula C2H6. It is formula of the ethane. So in one molecule of ethane, 2 atom carbon atom and 6 atom hydrogen atom. That shows real number of atom of constituent element present in one molecule. And simplest ratio means it is divisible. So you can write here the 2 3 are 6. So here CH3 is known as empirical formula of ethane. And a structure formula, how these atoms are arranged together. So you can write here 2 carbons singly linked together and with each carbon 3 hydrogen singly bonded. So here how atoms are arranged among atom, if it is shown, that is known as a structure formula. So it is molecular formula, it is empirical formula of ethane, and it is structure formula of ethane. The same way you can take the some more example. Suppose you have written here methane. It is molecular formula of methane, and simplest ratio, further not more simplify. So empirical formula also written. Formula it is CH4. So what you are observing, the some compound having molecular formula and empirical formula are same. And now here a structure formula, here with each carbon here 4 hydrogen singly bonded. So this is the structure formula. So suppose you have to write here the S2SO4. It is molecular formula of sulfuric acid, but here the empirical formula, here the same way 2,1,4. Further not, it is more simplified. So a structure formula also S2SO4. But in arrangement among atom, the sulfur linked with oxygen and oxygen linked with hydrogen, likewise another oxygen, and now 2 oxygen doubly bonded with sulfur. So this is the structure formula of sulfuric acid, how atoms are arranged together. Now you take the one more compound C2H2, acetylene or acetylene. So simplest form to cancel together. So simplest form CH.
and a structure formula, carbon carbon triply bonded and with each carbon one hydrogen link. This is the structure formula of acetylene and this is the empirical formula. And when you write the formula of benzene C6H6, that's empirical formula also CH. So what you are observing, there are so many compound which having same empirical formula. Next notable point, the some compound having molecular formula and empirical formula are same. Followed? So here it is clear the formula can be written in three form, one molecular formula, other empirical and a structure formula. So today's topic is the empirical formula. So we will think what the significance of the empirical formula. You may curious to know about it. So what's the need of writing the simplest form of the molecular formula, that is empirical formula. So फ्रेंड्स, ये चीज आप पहले जान लीजिए कि कोई भी कंपाउंड जब पहले आता है तो साइंटिस्ट लोग क्या करता है, व्हाट डू द साइंटिस्ट रिलेटेड टू दैट अननोन कंपाउंड. तो सबसे पहले उस कंपाउंड को प्यूरिफाई किया जाता है. यहाँ हेडिंग दे सकता हूँ, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और एनी अदर कंपाउंड. जब प्यूरिफाई हो जाता है तब हम साइंटिस्ट फर्दर क्या स्टेप लेता है, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट. साइंटिस्ट ट्राई करता है कि उस कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आपको केमिकली टेस्ट करके हमको एलिमेंट को फाइंड करते हैं. तो आपको प्रैक्टिकल में भी है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन एलिमेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंटली हम लोग इसको डिटेक्ट करते हैं. तो ये आपको 11th स्टैंडर्ड में ये भी है और सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी आपको ये टॉपिक आपको मिलेगा. प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स हाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्यूरिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. बहुत सा मेथड है, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आपको प्रेशर डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन. नाउ थर्ड स्टेप क्या होता है साइंटिस्ट का, एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट. एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट. जब साइंटिस्ट ये जान जाता है कि उस कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तब उसका फाइंड करता है कि परसेंटेज कंपोजिशन कंपेयर टू अदर किसका कितना अमाउंट है. तो ये भी आपको 11th स्टैंडर्ड में आपको फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको मिलेगा. न्यूमेरिकल पार्ट है तो आपको वहाँ आपको इसको पढ़ाई होगा. एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड. After estimating the element in that compound, then we next step followed, that is the determination of molecular mass. Determination of molecular mass. जैसे आप कभी हम लोग किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालने बोलते हैं तो आपको पहले फॉर्मूला पता होता है. जैसे आपको बोलेंगे कि सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकालिए, तो आपका ये फॉर्मूला पता है आपको कौन कौन सा एलिमेंट और कितना एटम है उस एलिमेंट का, तो उस हिसाब से आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं. जस्ट इमेजिन कीजिए जब ये फॉर्मूला आया नहीं था तब हमको मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला गया. यानी ये भी एक स्टेप है आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड. तो पहले हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं. अब इसका भी एक तो हुआ फॉर्मूला आपको बता देने से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, बट विदाउट नोइंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यू कैन फाइंड द और यू कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास. आप 12th में सॉल्यूशन चैप्टर है, वहाँ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, उसमें 4 मेथड है, जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग द वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ये 4 मेथड से टेक्निक से हम लोग किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास एग्जैक्टली हम लोग निकाल सकते हैं. तो ये भी आपको 12th का पार्ट है, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास.
अब मॉलिक्यूलर मास जब निकल जाता है देन वी कैन फाइंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। तो जो आज का मेरा टॉपिक है ये एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे, एंड 6 जब एम्पेरिकल फार्मूला मालूम हो जाता है तब हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड का आज हम मॉलिक्यूलर फार्मूला जानते हैं तो उसमें इतना प्रोसेस स्टेप गुजरना पड़ा है साइंटिस्ट को, तब हमारे पास ये किसी कंपाउंड का फार्मूला आता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसको हम याद करते हैं। तो आपको मालूम हो गया होगा कि इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है एम्पेरिकल फार्मूला का। एम्पेरिकल फार्मूला का मेन सिग्निफिकेशन ये है, इट हेल्प्स टू डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो कैसे इसमें न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके लिए पहले थोड़ा कुछ फार्मूला वगैरह है रिलेटेड टू एम्पेरिकल फार्मूला, तो आप उसको पहले नोट कर लीजिए, तब फिर हम लोग न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड तो उसका डिस्कशन करेंगे। तो इससे रिलेटेड आपको ये आएगा, पहले तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। ये रिलेशन आपको जानना है, जहाँ n फैक्टर है, जो n का वैल्यू 1 2 3 आपका ये वैल्यू आ सकता है। और इस वैल्यू को हम कैसे जानेंगे, यदि हमारा न्यूमेरिकल में ऑलरेडी मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो उसको जानने के लिए n यहाँ मॉलिक्यूलर मास यहाँ आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर मास, ये आपको न्यूमेरिकल में डायरेक्ट डायरेक्ट भी दिया रहेगा और इनडायरेक्ट भी कभी कभी दिया रहेगा। तो n इंटू फिर एम्पेरिकल फार्मूला मालूम रहेगा तो उसका एम्पेरिकल मास निकाल लेंगे। एम्पेरिकल मास यानी n वैल्यू कैसे निकलेगा, गिवन डाटा जो होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। तो n वैल्यू निकाल के तब फिर ये फार्मूला यूज करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए। तो आपको सबसे पहले तो एम्पेरिकल मास निकालना पड़ेगा। तो उसको कैसे निकालेंगे, उसका एक कॉलम है, प्रोसेस है, मेथड है, इसको आप नोट कीजिए। उसी के हिसाब से हम लोग किसी का एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लेंगे और एम्पेरिकल फार्मूला निकल जाने के बाद उसका एम्पेरिकल मास डिटरमिन करेंगे, तब आप इजीली मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। इसमें जैसे मॉलिक्यूलर मास यदि आपको डायरेक्ट नहीं दिया हो तो हो सकता है वेपर डेंसिटी दिया हो, तो उसके लिए भी फार्मूला नोट कर लीजिए। मॉलिक्यूलर मास इक्वल 2 इंटू वेपर डेंसिटी। जो वेपर डेंसिटी होगा उससे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। या तो इनडायरेक्ट में मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ इंडिकेशन या डाटा प्रोवाइड किया होगा और उस मोल कंसेप्ट के हिसाब से उसका हमको मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। तो यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड होगा, तो उसको जानना होगा। अब हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए एक कॉलम टेबल बनाते हैं और उसके आधार पे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो टेबल क्या है उसको नोट कर सकते हैं। पहले आपको जो एलिमेंट दिया है न्यूमेरिकल में उसको नोट कीजिए, A B C जो भी दिया हो। फिर इसका एटमिक मास होता है, अकॉर्डिंगली उसको आप नोट कर लीजिए। मान लीजिए एलिमेंट A का एटमिक मास स्मॉल a है और ये B एलिमेंट का स्मॉल b और ये स्मॉल c है। फिर आप नेक्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन दिया होगा, परसेंटेज कंपोजिशन। तो जो भी परसेंटेज वैल्यू दिया है, जैसे ये न्यूमेरिकल अभी मैं लिखा हूँ, यहाँ परसेंटेज वैल्यू दिया है आपका हाइड्रोजन का परसेंटेज, कार्बन का, क्लोरीन का, तो वैसे आपको परसेंटेज कंपोजिशन लिख लेना है। तो इसको मान लीजिए x% है, ये y% है, ये z% है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग नेक्स्ट कॉलम क्या बनाएंगे, परसेंटेज कंपोजिशन में आप एटमिक मास से डिवाइड करेंगे, तो ये आपको मोल को इंडिकेट करता है। परसेंटेज कंपोजिशन में डिवाइडेड बाय एटमिक मास, वो मोल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है वो।
तो इसके लिए कैसे निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, यहाँ x है और ये a है, इसका वैल्यू कुछ निकलेगा, यहाँ फिर y बाय बी और z बाय सी। अब इसमें से जो लोएस्ट वैल्यू होगा उससे हर एक में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल, यहाँ जो भी मोल का वैल्यू आया होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 1 2 3 यहाँ है, तीनों में से जो लोएस्ट वैल्यू होगा उसमें उससे हमको डिवाइड करेंगे। अब मान लीजिए वो फ्रैक्शनल आ गया तो राउंड करके भी लिखेंगे, तो ये होल इंटीजर में हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो इन होल इंटीजर में भी आपको ज़रूरत पड़ सकता है। ये हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस कॉलम का, होल इंटीजर। तो ये न्यूमेरिकल एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का है। यहाँ जो भी वैल्यू आएगा, मान लो ये 1 आया, ये 2 आया, ये 1 आया, तो हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला नीचे लिख सकते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये ए आपका जो आपका यहाँ आएगा 1 और बी एलिमेंट बी है, यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ सी 1 लिखेंगे। ये तो इस तरह से एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो अभी हम लोग उसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ न्यूमेरिकल दिया गया है, उसके आधार पे हम लोग बना लेंगे। एक कंपाउंड कंटेन 4.07 हाइड्रोजन एंड 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स मॉलिक्यूलर मास, यहाँ मॉलिक्यूलर मास डायरेक्ट दिया हुआ 98.96, यहाँ इनडायरेक्ट भी दे सकता है ये डाटा को। एंड वाटर इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल जाने के बाद आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो अभी हम ये एलिमेंट जो है उसको हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर। और तो देखिए यहाँ पर कार्बन लिखिए पहले, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, 3 एलिमेंट यहाँ दिया हुआ है डाटा में। तो कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन कहाँ है, ये तो हाइड्रोजन है, कार्बन है। ये एटमिक मास पहले कार्बन का लिख लीजिए, 12 होता है, इसका 1 होता है, इसका 35.5 होता है एटमिक मास। एटमिक मास आपको जनरली दिया रहता है डाटा में, या नहीं तो अपने से लिखना होगा। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन आपका दिया हुआ है 71.65%, ठीक है। और ये आपको दिया हुआ है 4.07%, और ये दिया हुआ है आपको 71.65%। अब परसेंटेज कंपोजिशन में उसका एटमिक मास से डिवाइड करेंगे, 71.65 बाय 12, और ये हो गया 4.07 बाय 1, ये 71.65 बाय इसका 35.5 से डिवाइड करेंगे। तो ये इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 2.02। 12 कार्बन, दैट इज chlorine, that one, no, 70, sorry, carbon here given, hydrogen 25, carbon 71.6, carbon 24. No, just उल्टा सेम लिखा गया है। कार्बन here given 24.27, 24.27, followed, and chlorine, that is same. Now here 12 2 ja 24, and about here that one come 2.02, and that is 4.07, and this one 35 2 ja 70, this is one also approx 2.02. So here lowest value what we are observing 2.02, 4.07, 2.02, same value coming. So lowest value 2.02 in each case here divided 2.02 by 2.02, that is 1, and 4.07 by 2.02 approx 2, and here 2 approx 2.02 by 2.02, that is 1. ओके कभी कभी आपको ये वैल्यू सपोज किसी कैलकुलेशन में आ गया 3.89, तो आप इसको लिख सकते हैं आपको 4, या 3.01 आया है तो अप्रोक्स 3 लिख सकते हैं, इस तरह का आपका है। लेकिन यदि आपको कहीं आ गया 3.5, तो आपको तो इसको राउंड अप नहीं कर सकते हैं, आपको ना 3 लिख सकते हैं ना 4 लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट कॉलम जरूरत पड़ेगा। तो 3.5 को यदि 2 से सुटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए, होल इंटीजर में आता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको 7 आ जाएगा। तो जब 2 से करेंगे तो सब में 2 से करना होगा। तो ये एक थोड़ा यहाँ
प्रिकॉशन लेना है। यदि आपको कैलकुलेशन में आपको नियरेस्ट में नहीं आ रहा है, तब आप उसमें होल इंटीजर से, सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दीजिए टू कन्वर्ट इनटू होल इंटीजर। तो आपको ये सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 आया। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 1 है। तो अब आप इसको एम्पेरिकल मास लिख सकते हैं। एम्पेरिकल मास कितना हो गया आपका 12 CH2Cl, 12 प्लस 2 × 1 प्लस 35.5, तो आपको कितना हो गया, तो ये 5 हो गया, 9 हो गया और ये 49.5 हो गया। ठीक है, अब हम लोग n वैल्यू निकालेंगे। n इक्वल क्या लिखा था, मॉलिक्यूलर मास डाटा दिया हुआ है एंड डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। तो आपका मॉलिक्यूलर मास यहाँ दिया हुआ 98.96 एंड डिवाइडेड बाय 49.5। तो ये अप्रोक्स आप 2 मरतबे जाएगा ये। तो n का वैल्यू 2 हुआ। तो अब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इन दिस न्यूमेरिकल्स क्या आया, फॉर्मूला इक्वल n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो n वैल्यू 2 हुआ, एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2Cl, तो आपका ये आ गया C2H4Cl2। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस तरह से हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला से हम लोग किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमिन कर सकते हैं। यही इसका मेन सिग्निफिकेंस है। तो सो वी कैन आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय नोइंग द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, थैंक यू।